Hi students, now today's topic is the same of the last topic which I am going to be continue. So 14 principle of management made by Henry Fellow. Last lecture we have discussed these all the 7 points. Now this rest of the 7 points we have to discuss in this today's video lectures. So principle of stability of tenor. According to Henry Fayol said that this principle, that means stability of tenor, will be used in your business organization. What is management? Management means manager does. These all the principle, ये जितने भी प्रिंसिपल हैं मैनेजर को गाइड करते हैं कि ये प्रिंसिपल को आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करके अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली to do the work more effective and efficiently. So these are the things very important. These are the guides, you can say. These are the principles where we are applying, the manager applying. Definitely the result will be, and they achieve the goal on time. So now stability of tenure means what? Whenever the manager recruit to our employee, then that time employee want the stability, sthir, of our tenure, means our working. That means employee want as a permanent job. If employee is a permanent job, employee will do the hard work, hard efforts, and getting the result on time, अच्छे से काम करेगा. And especially the you know very well, in government sector, in teaching line 3-year probation period are there, and then you can say in a 6-month probation period are there. After that the employee want the confirmation of permanent. So these are the important things. And even stability of tenure, it is very important. When the employee recruit, the management should assure them about the stability of their job first of all, and it helps to create the sense of belonging among the employees. That means employee will be think about that, I am in this business organization and I am the part of this. And employee who secure about his job will put his maximum efforts, and it will also help to minimize employee turnover ratio. Means if the business organization want our turnover ratio, then the business organization, the managers use this principle technique, this guide, and give assurance to the permanent job to our employees. Next point is principle of remuneration. See, first of all, what is the meaning of remuneration? Remuneration means the kind of an amount which is given by employer to employee as a salary, incentive, given to the worker as a wages, then any kind of fees, and any kind of salary, wages, padar, salary आप जो सुनते हैं, these are the remuneration. So that remuneration is very important. That means according to this principle, the remuneration of the employee must be paid as a fair amount of our salary or wages for the service they people to the organization. Means any person are doing the work in any business organization, the employer should be paid the fair wages. For remuneration about that, fair remuneration keeps the employees satisfied, and financial retain them for longer time which the organizations, and it helps to increase the productivity and efficiency as well also. That means if any employee will get the fair wages, so that definitely he will do the hard work. That means you can say application of and dedications.
application and dedication. Application means use of mind and dedication means use of heart. यानी अगर एम्प्लॉय का सैलरी उसके एपेबिलिटी, कैपेबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन और उसके स्किल के अनुसार उसको मिलता है तो डेफिनेटली वो अपने दिमाग से और अपने दिल से ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एफर्ट्स लेके काम करेगा. कौन? एम्प्लॉय. सो हेनरी फेवल ने बताया कि एम्प्लॉय को फेयर रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज principle of equity. Now principle of equity means what? That means equal. There is no injustice. Management should fair as well as friendly to the subordinate. That is okay, no problem. If management should be fair and as well as friendly to the subordinate, that means healthy environment will be created. And while allocating any work and delegating the authority and deciding the monetary terms, these all the aspect. There are three aspects. First is that allocating the work, काम बांट के देना, डेलीगेट अथॉरिटी, किसी को अथॉरिटी देना, एंड देन डिसाइडिंग द मॉनेटरी टर्म्स. जब ये डिसाइड करते हैं देयर शुड बी नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज. वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव. वहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए. काम देते समय काम का रिटर्न जो उसका सैलरी है वो डिसाइड करते समय मॉनेटरी टर्म्स जैसे इंसेंटिव हो गया, बोनस हो गया, एंड देन कुछ इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए. And further, the subordinate, the salary and wages of employee working at the same level should be the same even though they belonging to the different department. और हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग सैलरी होती है तो उसमें भी कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए. दिस विल हेल्प टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन. और ऑर्गेनाइजेशन में एक दुविधा और एक झगड़ा, एक वाद विवाद नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, सीनियर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन, सीनियर एग्जीक्यूटिव सेल्स विल बी इक्वल पे. यानी जो भी एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम करते हैं, चाहे वो अकाउंट में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो सेल्स में हो, उन सबका सैलरी एक जैसा होना चाहिए. बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट के लोग हैं तो वो भी सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे पोस्ट पे काम कर रहे हैं तो उनका जो सैलरी है, जो उसका फेयर रेम्यूनरेशन है, वो इक्वल होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. The principle of scalar chain means what? Scalar means what? Hierarchy authority from top level to lower level for the purpose of communications. Previously traditional method में क्या होता था, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता था कि हायरार्की सिस्टम एक बनाया जाता था. हायरार्की सिस्टम में ये मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है. तो इन प्रीवियस ट्रेडिशनल मेथड अगर A को कुछ मैसेज पास आउट करना है तो B को बताएगा, अगर D को अगर C से बात करना है तो A को B को बताएगा, B C को बताएगा, एंड A P को बताएगा, P Q को बताएगा. बट इन एमरजेंसी C want to टॉट एंड टेम्पटेशन विद द क्यू. सी क्यू से बात करना चाहता है तो ग्लैरन फ्लैंक एक नया सिस्टम आया जहाँ पे वो डायरेक्ट प्रायर परमिशन टू अथॉरिटी से परमिशन लेके वो डायरेक्ट सी क्यू से बात कर सकता है. तो स्केलर चेन का मतलब था कि द टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, दिस इज अ सिस्टम फॉलोइंग द कम्युनिकेशन. एंड दैट टाइम क्या होता था कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूज किया जाता था. इससे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता था. If the any financial decision taken by the top level management which require an effect in accounting system, then CFO, Chief Financial Officer, will first inform to the manager accountant को बताएगा और accountant जो head accountant को बताएगा. तो the head accountant will be the inform the accountant executive. Finally, the work will be done. But in order to due situation to avoid this longer chain of the communication and take speed decision, cross communication is very important. That means direct communication is very important. और ऐसे टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट किया और ये डायरेक्ट एंड कम्युनिकेशन जैसे सी को क्यू से डायरेक्ट बात करना है तो ए बी को बताएगा, सी डी को बताएगा, या ए पी से बात करेगा, पी क्यू से बात करेगा. बस इसमें टाइम कंज्यूमर ज़्यादा होता है. देन डायरेक्टली सी क्यू से बात करना है
तो सी डायरेक्टली जो क्रॉस कंप्यूटेशन करते हैं, डायरेक्ट कंप्यूटेशन जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं गैन प्लैंक। और फॉर डायरेक्ट कंप्यूटेशन प्रॉपर परमिशन अथॉरिटी इज नेसेसरी। अगर डायरेक्ट कंप्यूटेशन करना है तो आपके प्रॉपर परमिशन होना चाहिए अथॉरिटी का। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल ऑफ स्टॉलर चेन। नाउ प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट सेंट्रलाइजेशन। नाउ सेंट्रलाइजेशन दैट मीन्स यू नो दैट यू एनी वर्क। ये सबसे पहली बात तो क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन एक बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना। जो HSC SSC बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करती है, तो HSC SSC बोर्ड वाशी बोर्ड जब एग्जाम कंडक्ट करती है तो सभी बच्चे वाशी में नहीं जाते, इट शुड बी सेंट्रलाइज। पालघर के बच्चे पालघर में एग्जाम देते हैं, बोईसर के बच्चे बोईसर में एग्जाम देते हैं, मुंबई के बच्चे मुंबई में एग्जाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं तो इसको सेंट्रलाइज किया गया एंड उससे फ़ायदा क्या हुआ, दैट एग्ज़ाम जो होता है शुड बी इन प्रॉपर वे, एक अच्छे ढंग से लिया जाता है एंड डेफिनेटली देयर इज़ नो एनी डिफिकल्टी टू द स्टूडेंट। सेम वे अगर सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन वन और फ्यू हैंड। According to this principle, there must be proper balance between centralization and decentralization। यानी इसमें एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये डिपेंड करता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे भी 11th के एग्जामिनेशन है तो वो कॉलेज में हो जाते हैं, 9th और 8th 7th के एग्जामिनेशन है वो स्कूल में हो जाते हैं। बट जहाँ HSC SSC की बात आती है उसको सेंट्रलाइज किया जाता है, क्योंकि HSC बोर्ड उसको सेंट्रलाइज सेंटर अलॉट करता है। दिस इज टू बी डन अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ एक्टिविटी एक्सेट्रा। और सेंट्रलाइज इज सक्सेसफुल इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ओनली, एंड सेंट्रलाइजेशन जो सक्सेस होता है इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। और इसमें ये भी बताया गया कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली हैव डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी, यानी जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसको मोस्टली डिसेंट्रलाइज पावर ऑफ एंड अथॉरिटी में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। Now, principle of unity of direction means what? It states that there should be one head, one plan। यानी एक हेड होना चाहिए और हेड के दिया हुआ जो प्लान है उसको सभी ऑर्गेनाइजेशन के सब उसको फॉलो करना चाहिए। Each group in the organization should be have a same objective and the group should be directed by one manager using single plan। यानी सिंगल प्लान को लेते हुए ग्रुप में जितने भी लोग हैं उसको फॉलो करें और उस प्लान को कोई एक ही डायरेक्शन करे। दैट इज कॉल्ड, यू कैन से लाइक दैट, वन हेड वन प्लान। आई एम गिविंग वन एग्जांपल टू यू। द फाइनेंस हेड एंड मार्केटिंग हेड एंड HR हेड एंड IT हेड, ये सब हेड है इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टली बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी जितने भी हेड है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो फाइनेंस का हो चाहे मार्केटिंग का हो, उसको डायरेक्ट कौन करता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का CEO। तो वहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे से निकलता है। और मैनेजर इस चीज़ को, मैनेजमेंट के इस प्रिंसिपल को काफ़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज अडॉप्ट करती है, क्योंकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी प्लान देगा वो प्लान हेड मार्केटिंग के लिए भी होगा, वो HR हेड के लिए भी होगा, वो IT हेड के लिए भी होगा। Now last and very important point, that is the 14th principle of 14 points is principle of split the crops। Now first of all यहाँ पे जो मीनिंग दिया है split the crops means what? Unity is strength, unity is strength। You know, जहाँ पे अगर हम लोग कोई यूनिटी करते हैं तो उसकी ताकत बनती है। दैट मीन्स नाउ यू नो द अवर इंडियन टीम, तो वहाँ पे टीम स्पिरिट है। तो जहाँ टीम स्पिरिट मिलके सब मिलके काम करते हैं और वहाँ पे टीम वर्क होता है तो डेफिनेटली इंडिया वो मैच जीतता है। दैट मीन्स उसमें सभी का योगदान होता है, हर प्लेयर का योगदान होता है, बट टीम स्पिरिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। द पावर ऑफ मैनी इज ऑलवेज मोर देन पावर ऑफ वन। ऐसा बताया गया है कि सभी का मिलकर पावर अगर करेंगे तो एक पावर के बराबर माना जाता है। द मैनेजर शुड बी क्रिएट स्पिरिट ऑफ टीम वर्क एमंग द एम्प्लॉय। ये मैनेजर का काम है कि वो अपने एम्प्लॉय को एक टीम स्पिरिट करके एक टीम वर्क लेके चले। और दे शुड बी मेड टू रियलाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड अचीव। इससे क्या होता है
कि जो भी वो बिजनेस में रियलाइज करना चाहता है, बिजनेस का जो गोल अचीव करना चाहता है वो अचीव्ड होता है ओनली ड्यू टू द कंबाइंड एफर्ट्स। वो मिलके जो काम करते हैं, ऑल द एम्प्लॉयज़, जो भी मिलके लोग एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो वो एफर्ट्स कंबाइंड एफर्ट्स होता है, जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो रिजल्ट है, जो गोल है, वो जल्द से जल्द अचीव होता है। द मैनेजर शुड बिल्ड अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस अमंग द एम्प्लॉयज़। ये मैनेजर का काम है कि वो एक सेंस बिल्ड करे अमंग द एम्प्लॉयज़ विद द हेल्प ऑफ टीम वर्क। एंड इफ द गोल कैन बी अचीव स्मूथली एंड इजिली, इससे क्या होगा, जब टीम वर्क होगा तो जो भी गोल्स है, जो भी टारगेट है, वो इजिली स्मूथली अपने को मिलता है, रिजल्ट उसका मिलता है। इफ द वर्कर इफ द वर्कर वर्क विथ यूनिटी, अगर यूनिटी से लोग वर्कर काम करते हैं। सो दिस ऑल द थिंग्स ऑफ 14 प्रिंसिपल आई हैव कंप्लीटेड दिस एंड ऑल। आप इस वीडियो चैनल को 2-3 बार देखें एंड देन यू कैन रीड 2-3 टाइम्स। इफ एनी डिफिकल्टी यू कैन कॉल मी, आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी, मराठी and in English also. So that means you will clear this all the principle of management today now. Our next lecture we are starting the new topic. By the time you can write all these 14 principle, and this is a very IMP questions. I told in last lecture only for 5 mark also, for long question 10 mark also. But especially this 14 principle is a basically used in your human life, so you can adopt these all the things, because I know if any students become a manager, so he should be follow this all the principle of management, which is written by Henry Fayol. Thank you very much. Bye bye.